continued degradation and loss of wetlands. Written, should I repeat? एक मिनट. Continued degradation and loss of wetlands. Written, wetland. Next line. Funding pattern. Funding pattern is 70:30. ठीक है, and 90:10 for northeastern states. 70:30 for rest of the country. 70:30 is the ratio, and for the northeastern state it is 90:10. Okay. This I was talking about the first plan, the National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem. Second one, you write wetland conservation management rules. Management rules that came in 2010. Wetland conservation management rules. Conservation management rules 2010. Okay, in this you write one line. MOEF, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ऐसे शॉर्ट में होता है. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वैसे पूरा नाम. MOEF, गेटिंग द मिनिस्ट्री नेम, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसके लिए सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस नेम. और आगे भी उसकी साइट पे देखना, न्यू न्यू स्कीम्स लॉन्च जो होंगे, दैट यू कीप एन आई ऑन दैट. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट notified legally enforceable rules under the provisions of the Environment Protection Act. I'm repeating, MOEF notified legally enforceable rules under the provisions of the Environment Protection Act of 1986. 1986 to ensure that there is no further degradation of wetlands. Next point you write central wetland, हाँ इसी का एक और पॉइंट लिखो, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी was established. ठीक है, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी was established. और उसका चेयरमैन कौन होगा? MOEF का सेक्रेटरी ही इसका चेयरमैन होगा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स का जो भी सेक्रेटरी होगा, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी. गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन? What was established? Central Wetland Regulatory Authority. Who will chair that? The chairman of, or the chairman of the secretary of Ministry of Environment and Forest and the Climate Change. जो भी secretary होगा यहाँ पे. Getting? इसका चेयरमैन होगा. अथॉरिटी बनाना इसके अंदर में. ये रूल्स है, वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स है, उसमें क्या एस्टैब्लिश हुआ? रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई, दैट विल लुक आफ्टर दी ऑल द वेटलैंड्स. उसको हेड कौन करेगा? हु विल बी द सेक्रेटरी देयर? जो भी यहाँ पे सेक्रेटरी है. ठीक है, द चेयरमैन यहाँ पे कौन होगा? जो यहाँ का सेक्रेटरी है. गेटिंग? सेक्रेटरी ऑफ दिस मिनिस्ट्री विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी. गेटिंग? इज इट क्लियर? क्योंकि डायरेक्टली देखे ना हु इज द अथॉरिटी और हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी, है ना, कभी कभी स्टेटमेंट वाइज हो जाता है. इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट व्हाट केम, द थर्ड वन इज द, इसके रूल्स बदल के गवर्नमेंट अपना लेके आया इसका सेम. राइट ऑन थर्ड लाइन, थर्ड वन, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2017. थर्ड वन इज सेम,
wetland conservation management rules 2017. This is the latest one. Wetland conservation management rules 2017. Okay, this 17 one replace the 2010 one. इसको replace करके कौन आया? 2017 में नया बनाया गया, because new government was there after 2014. Something new should come or not, है ना? Polishing तो होनी चाहिए. चलो, what happened in this? Write down first point, decentralized. First point, decentralized wetlands management. Second, you write National Wetlands Committee. Decentralized. मतलब whatever the management earlier it was centralized management was there. Now what their aim was, statement में objective में क्या? Decentralization of the management of the wetlands. क्योंकि ultimately wetlands are located in different states. Okay, along with center support, states contribution और is also required, है ना? State के साथ center को मिलके काम करना होता है, ठीक है? So their motive was to decentralize the management. सिर्फ center से rule नहीं आना चाहिए. Like their rule was in नीति आयोग क्यों change किया? Top down approach ना होके bottom up approach हो, उसी वजह से एक centralized authority ना होके we will have a committee and that will work with the association with the states. That will work in association with the state. Okay, so their motive was to decentralize the wetlands management. Second point you write नेशनल वेटलैंड्स कमिटी, इसी में आप लिखो, इसके नीचे सेकेंड पॉइंट, नेशनल वेटलैंड्स कमिटी हेडेड बाय NWC. इसके अंदर आ गया, कौन आया? नेशनल वेटलैंड्स कमिटी हेडेड बाय द MOEF सेक्रेटरी, हेडेड बाय MOEF सेक्रेटरी, ठीक है? ओवर कॉमा यू राइट ओवरसी द वर्क, oversee मतलब देखना. What he will do? There is a committee, right? The secretary will look after the work, oversee the work carried out by the states. Oversee the work carried out by the states. ये फैन ऑफ कर दो, आवाज नहीं क्लियर आ रही? Is it clear? Because गर्मी हो गई. Oversee the carried out by the states. Oversee the work carried out by the states. Next, nodal advisory body for the national plan for conservation of aquatic ecosystem. I am repeating, headed by the Ministry of MOEF Secretary. Second, oversee the work carried out by the states, comma, nodal advisory body for the national plan for conservation of aquatic ecosystem. Write down third point, what established? State Wetland Authority. State Wetland Authority was established. इसी के अंदर हम देख रहे हैं State Wetland Authority. Getting earlier there was only Central Wetland Authority था, अब state level पे भी एक authority establish हो गई. Getting this will be headed by, write down, headed by Environment Minister. Every state has an Environment Minister, yes or no? So this will be headed by the Environment Minister. Full stop. Next line you write. It includes experts. We are talking about the State Wetland Authority. Okay. Headed by the Environment Minister. Next point, it includes experts from the fields of wetland ecology, comma, hydrology, wetland ecology, hydrology, comma, fisheries, comma, landscape planning and socio-economics. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेटलैंड मैनेजमेंट.
comma identification and notification of the wetlands, wetland management, comma identification and notification of the wetlands for protection, notification of the wetlands for protection within the stipulated time. Okay, is it clear? Now what action government is taking? Can you write what three, if it comes in mains, what action government has taken with respect to the wetlands? So what all points you will write? These three measures have been taken by the government. इसके points मैं specifically आपको एक sheet में दे दूंगी, ठीक है? इतना डिटेल में एक बार इनके points जो होंगे वो आप अपने end पे एक बार read कर लेना, ठीक है? Because it is not possible to declare every provision of this action all in the class. Okay? Important major head कौन करता है वो चीज मैंने बता दी. क्या authority develop हुई? That is road. ठीक है? Now we will look at the Ramsar site. Ramsar site के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं. Okay, when this Ramsar site came, when is the wetland day celebrated? Wetland day, 2nd February. 2nd February every year is celebrated as the wetland day. ठीक है? Why? Because this Ramsar convention was established. Ramsar कहाँ पे है? ईरान में. 1971 में ही this organization came. This convention was formed. Okay? So that every year 2nd February we have a wetland day. हर साल का एक थीम होता है. Okay? ढूंढ के आना इस बार का 2024 का. बताओ क्या होगा? होमवर्क में करना है या अभी ढूंढ के रख के लिख लेना एक बार इसको, ठीक है? विच इज द लेटेस्ट वन. ओके, लेटेस्ट जो थीम आता है ना, हर साल थीम चेंज होती है. ओके, चलो. इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी. ये क्या है? इसके बारे में हेडिंग डालो, राइट डाउन द हेडिंग रामसर. 2 points I will give you with respect to this. Ramsar International Treaty established by UNESCO. Established by UNESCO for the maintenance of. Established by UNESCO. Have you heard this word UNESCO or not? United Nations. Okay. International treaty established by UNESCO for maintenance of. Ecological character, for maintenance of ecological character, for sustainable use of wetlands. I am repeating, international treaty established by UNESCO for maintenance of ecological character, for sustainable use of wetlands. Okay, it was signed on 2nd February 1971. Okay, ये भी लाइन आप याद रखना. Signed on 2nd February 1971 in the city of Ramsar. Ramsar is in Iran. Okay. What happens? इसमें क्या है? इस कन्वेंशन में क्या हम लिस्ट करते हैं? We make a list of wetlands that are of international importance. ठीक है? What is the criteria for selecting this sites? इसमें क्या हम लिस्ट बनाएंगे क्राइटेरिया. जब किसी चीज को आप इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देते हो, इट मीन्स यू विल टेक केयर ऑफ दैट. यस और नो? इफ यू आर बीइंग अ पार्टी टू सम कन्वेंशन, यू विल टेक केयर ऑफ इट. अगर उसमें कुछ डिग्रेडेशन हो रहा है, इट इज डिप्लीटिंग, सो यू विल नोटिफाई टू द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दैट वेटलैंड. ओके, सो मेजरली व्हाट इज द मेन थिंग इज टू मेंटेन इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर सो दैट इट डू नॉट गेट एनी ड्राइड अप, और वहाँ की इकोसिस्टम है दैट डू नॉट गेट डिस्टर्ब. ठीक है? सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? बेसिक थिंग दैट Ramsar seeks to designate any area. First is it should be unique wetland. है कि नहीं? वहाँ पे कुछ endangered species, yes or no, है कि नहीं? तभी तो उनको प्रिजर्व करने की बात करेंगे, है ना? Ultimately what we are doing, we are preserving the environment. Whatever convention or institutions we will study, their motive is to protect something or the other. किसी species को protect करना, किसी animal को protect करना, किसी wetland को, पूरे ecosystem को protect करने की बात कर रहे हैं. We are talking to protect the whole wetland, whole ecosystem. Okay? Why? Because it has endangered species. कुछ very infamous species will be there, very important for the ecosystem. Essential species
species protection, water births are there. Okay, so these are the criteria. If wetland has this much of species are there, special type of birds are there, so that area will be categorized as the wetland of international importance. ठीक है. ओके, अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस देनी है तो क्या चीजें होंगी वहाँ पे इंपॉर्टेंस? वहाँ पे इंडिजिनस फिश हो गए, सिंपल स्पीशीज ऑफ वाटर बर्ड्स, मल्टी रोल, इको टूरिज्म इज वेरी हाई. ओके, सो जस्ट पूरा मत लिखो कुछ, बस ये वर्ड्स स्पेसिफिक लिख लो अगर लिखना भी है तो. बस अंडरस्टैंड द क्रक्स. इफ इट इज रिलेवेंट टू एनवायरमेंट, इकोलॉजिकली एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, सो वी विल प्रोटेक्ट दैट एरिया. ओके, इंडिजीनियस अभी स्पीशीज में हम देखेंगे, मतलब उसका होता है कि सिर्फ वहीं पे पाई जाती है. सिर्फ जैसे अगर लोकलाइज सिर्फ वो कहाँ पाई जाएगी, यूपी में स्पेसिफिकली पाई जाती है, या सिर्फ हमारे जो स्पेसिफिक बर्ड्स है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं. कि स्पेशल तरीके के फिशेज है सिर्फ उसी वेटलैंड में पाई जाती है. स्पेशल बर्ड्स है, स्पीशीज हैं सिर्फ उसी वेटलैंड में पाई जाती है, तो उनको हम क्या कहेंगे? इंडिजीनियस. जैसे मेड इन इंडिया मतलब इंडिजिनियस प्रोडक्ट आता है ना, कि इंडिया से बना हुआ है. सो लाइक दैट स्पीशीज आर ऑल्सो लोकलाइज. अफ्रीकन स्पीशीज आर डिफरेंट, इंडियन स्पीशीज आर डिफरेंट, सो दे आर इंडिजिनियस स्पीशीज. वन वर्ड इज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. ओके, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, उसमें क्या करते हैं हम? दिस टू थिंग. This is a register. If you will hear in the news, what is Montrex record? It is a register of Ramsar sites. ठीक है, जहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को क्या होता है, हम इकोलॉजिकल साइट्स, इकोलॉजिकल वेटलैंड्स को वी रजिस्टर दैट. ओके, विच नीड केटर टू देयर इंपॉर्टेंस, जिसको हमें क्या अभी देखना है, उनका ख्याल रखना है, विच इज ऑन द वर्ज ऑफ डिप्लीटिंग और डिग्रेडिंग. ओके, इट इज अ रिकॉर्ड और द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स. गेटिंग? एंड दे नीड, अब वहां पे क्या, अगर हम किसी को उसमें डालते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप उसके तरफ काम करो, उसको प्रोटेक्ट करो, वहां की इकोलॉजी को सस्टेनेबल बनाओ. यस और नो? इफ यू आर पुटिंग, अगर मैं किसी को रेड लिस्ट में डाल रही हूँ किसी चीज को, या किसी को आपको अलग से लिस्ट में नाम डाल रही हूँ, कुछ बच्चों पे ध्यान देना है, तो ये उसी तरीके की लिस्ट है. दिस वेटलैंड्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड और कंजर्व बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस. दिस इज डिग्रेडिंग. Okay, so from India only 2 wetlands of wetlands are there. ठीक है, ये नेम याद रखना. 2 wetlands are in this Montrex record. One is Keoladeo National Park, Rajasthan, and second one is the Loktak Lake. Okay. These wetlands have degraded, so their name has come up in this register. Getting the importance? Is it okay? Understood what is Montrex record? If you will come in exam or any paper, any test, will you be able to understand कि Montrex record किस चीज से related है? It is related to wetland. It lists all the wetlands that are of importance for conservation, that are important, that are verge on degrading. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? Ecological character change हो रहा है. What does it mean? It is losing its natural character. है ना? पहले wet था, many species were there, diversity was there, but now it is depleting. Why it is depleting? Because of टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन हो रहा है, ह्यूमंस वहां पे जाके क्या कर रहे हैं? इंटरफेरेंस कर रहे हैं, है कि नहीं? वहां पे जाके गंदगी फैला रहे हैं, तो वहां पे नेचुरल जो स्पीशीज है वहां के डिप्लीट हो रहे हैं, मर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर दोज wetlands. Okay, from India, 2 important. One thing also you remember, works closely with 6 organizations. अभी अकेला तो काम नहीं कर सकता, ये कन्वेंशन है, तो किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके यह काम करते हैं? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, थर्ड वन, फोर्थ वन वेटलैंड्स इंटरनेशनल, देन दिस वन 1 2 3 4 fifth one, this is World Life Fund for Nature. Okay, then International World for Wetlands and Trust. These are the 6 organizations that contribute to the Ramsar Convention. Getting?
सो इसमें हम सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे या वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, से हर सेक्शन में उसके ऑर्गेनाइजेशंस को हम डील कर लेंगे। ओके, फ्रॉम हियर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल IUCN बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स अभी हम देख लेते हैं इंटरनेशनल क्या है वेटलैंड्स। बर्ड लाइफ हम जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन देखेंगे तो उसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को देखेंगे। फिर WWF1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हम इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में भी लुक एट दैट। गेटिंग? Here you will remember just which are the main 6 organizations that are contributing with the Ramsar Convention. Written? Written? So we were studying about what wetland ecosystem we are studying. ठीक है? In this we studied what action government has taken. Indian government has taken 3 measures till now. कौन कौन से थे? पहला बताओ. What was the first initiative the government of India took for the Ramsar Convention? निशा? हाँ? नहीं, अभी जब हम नेशनल इंडिया लेवल पे क्या हो रहा था? नेशनल, what it is, repeat? Conservation of aquatic ecosystem. Second one, wetland conservation management rules 2010, then came 2017. These were at national level. International level, first we studied about the Ramsar Convention. This is towards wetland preservation. Yes. Second thing that you will remember is, write down, second is the Wetland International. Write down this heading, Wetland International. One line we will write for this, Wetland International. Write down this heading. Is a global Wetland International is a global non-governmental organization, NGO. It is a non-governmental organization to sustain and restore wetlands, to sustain and restore wetlands and their resources for people and biodiversity. For people and biodiversity. It is an NGO, okay? That उसमें क्या होता है? A treaty थी, international treaty that was there. So ये word जरूर याद रखना कि what is Wetland International? It is an NGO. Okay, this word should be clear. Write down one more line. It includes, have you written wetlands and their resources for people and biodiversity? Then it includes research, comma, engagement with governments, comma, corporates, etc. It does research करता है, it engages with the government to look after any wetland and also it work with the corporates to look after this wetlands. Okay, क्योंकि social responsibility होती है किसी की भी, corporates की भी social responsibility होती है to do something for the environment, society, so do it through this international organization. Okay, now we will look at one thing, Ramsar sites. We are studying about the Ramsar site. तो एक बार मैप देखना जरूरी है कि इंडिया में Ramsar sites कहाँ पे located है.
व्हाट हैपेंड? इतने सारे डर गए। एग्जाम में जो रिलेवेंट है वो याद कर लेना। एक बार घर पे जाके रामसर कितने कोई भी मैच दो, इफ यू आर डूइंग वनडे एग्जाम ना, मैच द फॉलोइंग कहीं से भी आ जाता है, किसी भी स्टेट से रिलेटेड। दिस रामसर साइट इज लोकेटेड और विच प्लेस। सो बट रिसेंटली जो 2004 में आए हैं और जो 2023 में आए हैं, सो दैट यू विल जरूर से रिमेंबर, ठीक है, कि कौन से स्टेट के रामसर साइट की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे इन 2024 अभी तक जहां तक मुझे नॉलेज है, आई थिंक ये लेटेस्ट ऐड हुए हैं। ओके, सो दिस इज अंकशमुद्रा, ठीक है, अंकशमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन। कहाँ पे ये लोकेटेड है? कर्नाटका। अंकशमुद्रा बर्ड्स कंजर्वेशन। गेटिंग? सेकेंड वन, अग्नाशिनी एस्चुरीज, अग्नाशिनी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अग्नाशिनी, that is in Karnataka. Magadi Kere Conservation Reserve, that is in Karnataka. Okay, then Karaivatti Bird Sanctuary, Tamil Nadu. Longwood Shola Reserve, Tamil Nadu. So इनके state and place, name of the place you will remember. Getting? So recently अभी ये पांचों add हुए। अब टोटल कितने, पहले कितने थे लास्ट ईयर तक रामसर साइट? एनी न्यूज? 75 वर देयर, 5 और हो गए, तो इस बार कितने हो गए? 80। ठीक है, तो सारे मत याद करो, बट एक बार मैप में जाके उनको देखना जरूर। ओके, कौन से स्टेट में कितने रामसर साइट्स हैं? ओके, इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स जरूर देखना। दिस इज हाउ, देखो वेटलैंड्स कैसे दिखते हैं, ऐसे एरियाज जहां पे पानी भी हो, लैंड भी हो। गेटिंग दिस रीजन? ये वाला थोड़ा दलदली वाले एरिया, repeat the names, Nick. All the names you repeat once. What are the 5 Ramsar sites recently? Okay. Magadi Kere Reserve. Okay. Longwood Shola Reserve. Okay. So name आप, if you will repeat again, say it again, mark it again 3 times. At least कोई भी प्लेस को आप 3 टाइम्स पढ़ा करो, ठीक है। एक बार लिखो, एक बार उसको मैप में देखो और 2 बार बोलो उसे, तब आपको उसको याद हो जाएगा, ठीक है। Like this only you will remember all the Ramsar sites, ठीक है। धीरे धीरे आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे, मल्टीपल टाइम्स मैप में देखोगे, इफ यू विल रिलेटेड विद द न्यूज इवेंट्स, देन ओनली यू विल रिमेंबर। वरना आपको लगेगा अरे 70 के 70 कैसे मैं याद करूं, बट स्लोली स्लोली इन कमिंग 2-3 years यू विल बी एबल टू रिमेंबर एटलीस्ट 30 आई गेस, जो न्यूज में हो। ओके, एक तो सबसे ओल्डेस्ट जो फर्स्ट रामसर साइट है वो सब कुछ याद रखना, और जो लेटेस्ट एडिशन है 2023 2024 वाले, सो दैट यू रिमेंबर। ओके, so these are the Ramsar sites. इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट था, पर आई थिंक टाइम इज ओवर, है ना। चलो वी विल एंड इट हियर। एक इमेज आप ये फोटो ले लो और गेट द डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं लेक्स कहती हूँ और वेटलैंड्स कहती हूँ, उसमें क्या डिफरेंस होगा। ओके, इसको एक बार स्टडी करना, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? Only first to origin and definition, these are sufficient. Okay, सिर्फ origin भी समझ जाओगे कि what are lakes और wetlands में क्या difference है, that is sufficient. Okay, अच्छा, 2 वर्ड्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड मैक्रोफाइट्स। इसको मुझे बताना था, ये दोनों क्या है, इन वर्ड्स का मतलब पता है कैसे दिखते हैं? व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स एंड व्हाट आर मैक्रोफाइट्स। फाइटोप्लैंक्टन्स, ये जो वर्ड्स है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड मैक्रोफाइट्स। इमेज तो आपने ले ली, पर घर पे समझ में नहीं आएगा ना ये दोनों वर्ड है क्या, कैसे दिखते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर मैक्रोफाइट्स। मैक्रोफाइट्स मतलब हो गए आपके एक्वेटिक प्लांट्स। ये भी एक तरीके से प्लांट ही है, दैट इज हाइड्रिला या वाटर हाइसिंथ।
एक्वेटिक प्लांट एनिमल, ये देखो फाइटो मीन्स लाइट, ठीक है, इसमें ऐसे स्पीशीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इमेज में दिखाती हूँ हाउ दे लुक। देखो देयर इज अ डिफरेंस, दीज आर कॉल्ड, ये जो है ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, और ये वाले जो है ये है मैक्रोफाइट्स। गेटिंग? दिस इज वाटर हाइसिंथ, ये दिस इज हाइड्रिला। ओके, तो दीज आर, अब देखो इनको पानी में ऊपर तैर रहे हैं बट इनका स्ट्रक्चर ये क्या, ये अलग तरीके का है। दीज आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, डिफरेंस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज कह सकते हो, प्लांट स्पीशीज, एक्वेटिक प्लांट्स ही हैं बट देयर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन इज डिफरेंट। गेटिंग? पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है, ये भी पानी के ऊपर तैर रहे हैं शैलो वाटर्स में। इनका है लोटस भी कह सकते हो, हाँ लोटस भी एग्जाम्पल। लोटस भी ऊपर की तरफ फूल आता है ना, ऊपर तैरता रहता है। एक और भी 2-3 फ्लावर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ दिखते हैं, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के। तो जो पानी के ऊपर शैलो वाटर में टहलते रहते हैं एक्वेटिक प्लांट, जो जिनकी जड़ें क्या है, पानी में रहती है, पानी में तैरती रहती है ना, जो वाटर डायरेक्ट वाटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हैव यू हर्ड? सो वो किस में आ गए, इसमें एक मैक्रोफाइट्स। ये वर्ड डिफरेंट वर्ड से आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये बोल क्या रहा है मैक्रोफाइट्स मतलब। आप इमेजेस देखना, मैक्रोफाइट प्लांट्स ऐसे करके, ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, एक बार गो एंड लुक एट द इमेजेस ऑफ देम। जू मतलब एनिमल से रिलेटेड हो गया, एलबी। जू प्लैंक्टन तो क्या हो गए, एनिमल, जू वर्ड इज रिलेटेड टू एनिमल्स, यहाँ प्लैंक्टन मींस प्लांट से रिलेटेड है। ओके, क्रीचर्स हो गए वो अलग। चलो वी विल एंड इट हियर, ठीक है। थैंक यू क्लास। क्या क्या